हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टिडबिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस यानी सर्वनाम कहते हैं। Now, friends and my dear students, why do we use a pronoun? हम क्यों यूज़ करते हैं pronoun को? The simple reason is to avoid a repetition of nouns in a sentence. कई बार हम noun को repeatedly यूज़ कर देते हैं. To avoid that repetition, we use a pronoun. Now, for example, Rita is a good girl. Rita is very intelligent. This sentence can be written as Rita is a good girl. She is very intelligent. हमने यहाँ क्या किया है? फर्स्ट पार्ट जो है इस सेंटेंस का, उसमें हमने रीटा लिखा है। सेकंड पार्ट में भी हमने रीटा ही यूज़ किया है। रीटा यहाँ नाउन है, पर हम जब इसको सेकंड टाइम रीराइट करते हैं तो हमने क्या किया है? सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने शी यूज़ किया है अदर देन रीटा. Hence, what is this she here? Yes, she is a word that has replaced Rita in a sentence. Hence, this is what? Correct. This is a pronoun. Here the word pronoun stands for the noun Rita. Now, which other words can be pronouns? He, she, itself, which, who, that, these, etc. are examples of pronoun. Now, let us study where we can use the pronouns. Pronouns can be used as a subject and an object in a sentence. For example, she told me a truth. Here, she is the subject, doing the action, told, to whom? Me. So, me is an object that is receiving the action. Subject action करता है and object action को receive करता है. Now let us see which are the pronouns used as subject and which of them are used as an object. Now we'll study this table here. I, we, you, he, she, it and they are used as subjects. And the pronouns like me, us, you, him, her, it and them are used as object in a sentence. Now, how many types of pronouns are there? Pronouns can be categorized in the following types or kind. हम 9 kinds में pronoun को study कर सकते हैं. Personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronoun, emphatic pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, distributive pronouns, and indefinite pronouns. In this video lesson, we are going to discuss each type with the example so that it becomes easy for all of us to understand. Now, let us move on to the first type of pronoun, personal pronoun. Personal pronoun किन्हें कहते हैं? These pronouns are the words that replace nouns that act as the subject or the object in a sentence. Personal pronouns 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स आई एम द स्पीकर. मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं वह क्या हैं? लिसनर्स हैं. तो आप सेकेंड पर्सन हुए. दैट मीन्स सेकेंड पर्सन्स रेफर टू द लिसनर्स और द ऑडियंस. और हम किसी और व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात करें या किसी जगह के बारे में बात करें तो वह थर्ड पर्सन रहता है. दैट मीन्स थर्ड पर्सन रेफर्स टू द पीपल एंड थिंग्स दैट आर टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस. हम एक वाक्य में जिनके बारे में बात करें वह क्या बन जाते हैं? थर्ड पर्सन बन जाते हैं. नाउ आई लाइक आइसक्रीम, यू लाइक आइसक्रीम एंड दे लाइक आइसक्रीम. तीनों ही सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं. यहाँ आई
फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है एंड दे थर्ड पर्सन है. जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन मोस्ट प्रोबेबली या तो हमसे अलग होता है या होता ही नहीं है. That is why we say that third persons refer to the people or things that are talked about in a sentence. Now, personal pronouns are singular and plural form. Now let us see which are the personal pronouns used as singular and which of them are used as plural. The first of all is first person. I is used as singular pronoun and we as plural. In second person, you is used as singular and plural both. Third person, he, she, it are singular subjects and they is plural subject. Now let us move on to the next type of pronoun, that is possessive pronoun. Possessive का मतलब होता है अधिकार शो करना. That means ये कौन से pronoun हुए? Which refer to the words that show possession. Something belongs to someone. For example, this house is mine. Whose? Mine. जब हम पूछते हैं किसका तो आंसर आता है mine. यहाँ पे हमने noun का यूज नहीं किया है. mine यहाँ noun के स्थान पर यूज है, इसलिए यह possessive pronoun है. These are your books and those are his. His is a possessive pronoun. So here in these two sentences, mine and his are possessive pronouns showing possession. Now let us study the given table here. These are the examples of possessive pronouns: mine, ours, yours, his, hers and theirs. My dear friends, always remember, its is used as a possessive adjective and not as a possessive pronoun. It को हम possessive adjective की तरह use करते हैं, possessive pronoun की तरह कभी नहीं करते हैं. Now आप सोच रहे होंगे possessive adjectives क्या होते हैं और कौन से types के adjectives होते हैं. To know what are adjectives and what are the types of the adjectives, you will come to know through my next video lesson on the topic adjectives. इसके लिए आप मेरा YouTube चैनल Tidbits of English Grammar सब्सक्राइब कीजिए. Now let us move on to the next type, that is demonstrative pronoun. Demonstrative का मतलब होता है point out करना किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को. So the words that identify or point out a noun in a sentence such as this, that, these, those, ये क्या है? Demonstrative pronouns है. यहाँ पे this और that singular के लिए यूज़ होते हैं and these and those plural के लिए यूज़ होते हैं. आइए देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं ये वर्ड्स. These are my new books. That is your house. This is a beautiful painting. Those were his toys. यहाँ पे this and these जो चीज़ें हमारे पास या नज़दीक होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, and that and those जो हमसे दूर होते हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम that और those का यूज़ करते हैं. The next type of pronoun is reflexive pronoun. Reflexive pronouns are the words which are used to refer back to the subject of the sentence or we can say the doer of the action. एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, जब हम वापस उसी के बारे में या उसी को पॉइंट आउट कर देते हैं सेंटेंस में, तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. अब यह कैसे बनते हैं? These pronouns are formed by using suffixes like self and selves. यहाँ self singular के लिए यूज़ होता है and selves plural के साथ में यूज़ होता है. And again these reflexive pronouns are used in place of a subject and an object. Now first of all see which are the words used as reflexive pronoun. Myself, my plus self यानी कि singular my plus self. Ourselves are plural है, उसके साथ में हमने selves यूज़ किया है. Yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves are the examples of reflexive pronoun. अब reflexive pronoun sentence में क्या रोल प्ले करता है, आइए ये समझते हैं. For example, Rajiv hurt himself while riding a bicycle. राजीव को हर्ट हुआ
तो ऑब्जेक्ट में किसको बोल रहे हैं हम? वापस हम राजीव की बात कर रहे हैं. राजीव हर्ट हुम हिमसेल्फ, यानी कि जो एक्शन हुआ उसका इफेक्ट किस पे आया है? राजीव पे आया है. दैट मीन्स हम वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं. दिस हिमसेल्फ हियर इज अ रिफ्लेक्सिव pronoun. Now see the second sentence. I myself is to be blamed for the failure of the project. I myself, हम वापस किसको रेफर कर रहे हैं? सब्जेक्ट आई को रेफर कर रहे हैं. किसे ब्लेम मिलेगा? मुझे मिलेगा. So this myself is a reflexive pronoun in a sentence. जब यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस है. एम्फेटिक प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट. दे आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट दे एम्फेसाइज. मोस्टली तो ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, पर हम इन्हें और प्रोनाउंस की तरह सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह, दोनों जगह यूज कर सकते हैं. यह कौन से वर्ड्स होते हैं? दिखने में ये सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन. आइए सबसे पहले अपना एग्जाम्पल लेते हैं. The first sentence. She herself told me the truth. She यहाँ सब्जेक्ट है, जो doer of the action है, सच्चाई बताने का. She told, बताना. She herself told क्या बता रहा है? कि उसने, खुद ने बताया. तो जब हम खुद और स्वयं का यूज करके उसको एम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, तो वह एम्पैटिक प्रोनाउंस बन जाते हैं. Now let us have a look at the second sentence. Rama baked the cake herself. Rama baked the cake. Herself shows emphasis that Rama herself, खुद से उसने baking की. So the words like herself in both the sentences are emphatic pronouns. अब आप emphatic pronouns अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहाँ she herself told me the truth. अगर मैं यहाँ से herself रिमूव कर दूँ इस फर्स्ट सेंटेंस में से, अगर मैं herself को रिमूव कर दूँ तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? she told me the truth. फ्रेंड्स, अगर मैं herself रिमूव करती हूँ तो क्या ज़्यादा डिफरेंस आता है सेंटेंस में? नहीं. हैंस जब हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में, तो आप इस प्रोनाउन को वहाँ से रिमूव करके देखिए. अगर सेंटेंस अफेक्ट होता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर सेंटेंस अफेक्ट नहीं होता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन है. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव इटसेल्फ मीन्स रिलेशन शो करना. So the words that are used to add information about a noun or a pronoun already mentioned in a sentence are called relative pronoun. जो noun और pronoun already एक sentence में है, उसके बारे में कोई information add करना या उससे relate करना, वह words क्या कहलाते हैं? relative pronouns कहलाते हैं. ये relative pronouns किसी भी दो sentences या clauses को join करने के भी काम आते हैं. कौन से words हैं ये? ये हैं which, that, whom, who, whose. For example, see the first example here. The boy who gave me this storybook is my friend. कौन सा लड़का? जिसने मुझे ये किताब दी. तो यहाँ दो क्लॉज हैं. The boy is my friend who gave me this storybook. तो इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड का हमने यूज किया वो कौन सा है? हु. हैज दिस हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज द मैन whom I met yesterday. This whom is a relative pronoun. Now let us move on to the next type of pronouns, distributive pronoun. Distributive itself means distribution show करना.
और डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम क्या करते हैं, एक एक व्यक्ति को देते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं. हैंस दीज वर्ड्स रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक एक करके हम रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइदर, नाइदर, ईच, एनी, एनीवन, नन, they refer to one thing or a person. For example, each student must be honest. एक एक बच्चा ऑनेस्ट होना चाहिए. Either of you can come and help me. यहाँ हम ऑप्शन तो दे रहे हैं पर फिर भी हम इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक आके मुझे हेल्प कर सकता है. So these words show distribution as they are called the distributive pronouns. The next type is interrogative pronoun. Interrogative means to ask questions, प्रश्न पूछना. तो जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम interrogative pronouns कहते हैं. These pronouns are used to ask questions. They are 5 in number: who, whose, which, what and whom. For example, आइए मैं आपसे कुछ questions पूछती हूँ. What is your name? Who are you? Whose is that house? यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वॉट, हु और हुज के बाद नाउन का यूज़ नहीं किया है. यह एक आसान तरीका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पहचानने का. जब भी हम वॉट, हु और हुज का यूज़ विदाउट नाउन करते हैं, वर्ब से पहले, वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. इनडेफिनिट का मतलब जिन्हें हम नहीं समझ पाते. जैसे एनीबडी, कौन है, कोई भी इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक. इनडेफिनिट मतलब जिनका जो स्पेसिफिकली नहीं हम जिनके बारे में बात करते हैं उन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. इसलिए मैंने कहा नहीं जान पाते कौन है. सो दीज आर द वर्ड्स दैट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो एनीबडी इन माई न्यू स्कूल. एनीबडी मीन्स वह कोई भी हो सकता है. समवन हैज स्टॉल इन माई स्टोरी बुक. समवन कौन है यहाँ, आई डोंट नो, कौन है, कोई भी हो सकता है. सो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है. फ्रेंड्स, इनडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं. आइए देखें कौन सी सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं. समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, वन, नो वन, नन, एनीथिंग एंड नथिंग एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस. एंड प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, लाइक बोथ, all, several and some are the examples of plural indefinite pronouns, जो एक से ज़्यादा pronouns के बारे में बात करते हैं या people और things के बारे में बात करते हैं. I hope friends you must have understood what are pronouns. pronouns के कितने types होते हैं, हर type किसको refer करता है, कौन से words हैं जो किस तरीके से sentence में use किए जाते हैं. आगे भी जिस भी topic पे आप जानना चाहते हैं प्लीज़ आप comment box में मेंशन कीजिए. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Tidbits of English Grammar. Thanks for watching and listening to this video.